Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a very beautiful chapter which name is The Summer of the White Beautiful Horse, written by William Saroyan. This chapter is basically about the two boys who one of them steals a horse, a beautiful horse, and the other, who is the cousin of the first one who steals the horse. Both of them take ride on the back of the horse, and the irony is that they belong to a tribe, and their tribe is known for their honesty. So now there is a dilemma in for both of the boys whether they should return the horse or not. So what happens we will come to know after reading the chapter. So let us start the chapter. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. बहुत पुराने दिनों की बात है कि जब मैं 9 साल का था, तो ये वो उम्र होती है कि जब दिमाग में बहुत तरह की इमेजिनेशंस होती है और वो इमेजिनेशंस बड़ी शानदार होती हैं। लाइफ बड़ी अच्छी थी, डिलाइटफुल थी और मिस्टीरियस थी। मेरा जो कज़न मुराद था, जिसको हर कोई एक पागल मानता था सिवाय मेरे, वो एक दिन सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर पर आया। तो उसने मेरे रूम की जो विंडो थी उस पर टैप किया और टैप करके मुझे जगाया। राम, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. मैं तो बिस्तर से एकदम उछल कर खड़ा हो गया और मैंने विंडो के बाहर देखा। I couldn't believe what I saw. जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। It wasn't morning yet, but it was summer, and with the daybreak and many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. हालांकि अब सुबह नहीं हुई थी, लेकिन ये समर का सीज़न था, तो दिन निकलने में कुछ मिनट्स बाकी थी, लेकिन आसपास की जो रोशनी थी उसमें मैं साफ देख सकता था कि मैं जो देख रहा था वो सपना नहीं था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. Yes, he said in Armenian, it's a horse, you are not dreaming, make it quick if you want to ride. मेरा कज़न मुराद एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने अपना सर विंडो से बाहर निकाला और अपनी आंखों को रब किया। उसने अर्मेनियन भाषा में कहा कि हाँ, ये घोड़ा ही है और तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी आओ अगर राइड लेना चाहते हो तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than ever I could believe. मैं जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो एक ज़िंदा दिल इंसान है किसी दूसरे के मुकाबले, जो कि इस दुनिया में बाय मिस्टेक नहीं आया था। बट बस इतना मुझे पता था जिसके बारे में यकीन कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन memories of horses and my first longings and had been longings to ride. पहली चीज़ तो ये है कि जो मेरी शुरुआती जो यादगार है घोड़ों के बारे में, वो ये है कि मैं राइड के लिए तरसा करता था। लॉन्च का मतलब होता है तरसना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये सबसे शानदार पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट that wouldn't permit me to believe that what I saw is poverty stricken. Every branch of the Garoglian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. तो वो बताता है कि ये जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जिसमें हम गरीबी झेल रहे हैं, तो वो कहता है कि हमारी जो ट्राइब थी वो सबसे ज़्यादा गरीबी की मारी हुई थी।
और जो गैरोग्लियन फैमिली, जो हमारी ट्राइब का नाम था जिससे हम बिलोंग करते थे, वो सबसे अमेजिंग और कॉमिकल पोइट्री में रहती थी। दुनिया की एक ऐसी ये जनजाति थी जो कि एक अमेजिंग और कॉमिकल पोवर्टी स्ट्राइकन थी। कोई भी इस बात को नहीं समझ सका कि हम अपना जो राशन पानी मतलब जो पैसा है वो कहाँ से आता है खाने के लिए। जो हमारे परिवार के जो बड़े बूढ़े लोग थे उनको भी नहीं पता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात हालांकि ये है कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। लगभग आप ये मान के चलें कि 11 शताब्दियों से हमारी जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। और अगर जिस दुनिया में हम रहते थे उस दुनिया को अगर हम रियल दुनिया मान लें तो उस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। पहले हमें गर्व था, दूसरे हम ईमानदार, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और उसके बाद हम सही गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हम किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, चोरी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any other of members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. And if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. नैरेटर कहता है कि घोड़े को देखने के बाद में मेरा जो घोड़ों के प्रति प्यार था वो एकदम से जाग गया। उसकी जो मैग्निफिसेंट जो उसकी स्टेचर थी मैं उसको देख सकता था। उसका कलर, उसकी ब्रीदिंग, उसकी ताकत, सब चीज़ों को मैं स्मेल कर सकता था, फील कर सकता था, जो कि मुझे बहुत एक्साइट कर रहा था। लेकिन एक डिफ़िकल्टी ये थी कि मुराद उस घोड़े को ख़रीद नहीं सकता था। मुराद क्या, मैं या मेरी फैमिली का कोई मेंबर उस घोड़े को ख़रीद ही नहीं सकता था, न सपने में न जागते हुए। अगर हम इसको ख़रीद नहीं सकते थे तो उसका मतलब मुराद ने उसको चुराया था, और मुराद ने इसको चुराया था ये हो नहीं सकता था क्योंकि हम अपनी ईमानदारी के लिए बड़े फेमस थे। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी अ थीफ। हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन द हॉर्स। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। पहले मैंने कज़न की तरफ देखा, फिर घोड़े की तरफ देखा, तो ये एक ऐसी कॉमिकल सी सिचुएशन बन गई थी कि जिसमें कि मुझे डर भी लग रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि अगर हम पकड़े गए चोरी के केस में तो पूरी ट्राइब्स पर काली कूद जाएगी। हंसी इसलिए आ रही थी कि सामने घोड़ा है और अपना जो शौक़ है घोड़ा हॉर्स राइडिंग का उसको मैं पूरा कर रहा था, और दैट वाज वेरी फनी। मुराद ने कहा, मैंने मुराद से कहा, घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो। उसने कहा, अगर राइड लेना चाहते हो तो खिड़की से बाहर आ जाओ। ये सच था। He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. उसने घोड़ा चुराया था, ये बात तो पक्की हो चुकी थी, इस बात में कोई शक नहीं था। हालांकि अब वो मुझे राइडिंग के लिए इनवाइट करने आया था। अब मैं जाऊं या ना जाऊं ये मेरी चॉइस थी। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. Well, मेरा मानना तो ये था, जो मुझे उस टाइम पर लगा कि राइडिंग के लिए किसी घोड़े का चुरा लेना वो दूसरी चीज़ों से बिल्कुल अलग था, जैसे कि पैसा वगैरह होता है। For all I knew, जितना मुझे पता था, maybe it wasn't stealing at all. इसको चोरी नहीं कह सकते थे। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. अगर आप मेरे या मेरे कज़न की तरह घोड़ों के पीछे पागल हैं तो उस जुनून के चलते, उस पागलपन के चलते इसको चोरी नहीं कहा जा सकता।
It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और जब तक हम इस घोड़े को किसी दूसरे को नहीं बेचेंगे तब तक इसको चोरी नहीं माना जाएगा, जो कि हम करने वाले नहीं थे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स. कुछ कपड़े पहन लेने दो. ठीक है, जल्दी करो. आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स. मैं एकदम से अपने कपड़ों में मैंने पहने. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद. अब मैं भाग करके यार्ड में गया और अपने कज़न मुराद के पीछे जा कर के मैं बैठ गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. उस ईयर जो शहर का जो एज था, जो किनारा था, वॉलनट एवेन्यू, वहाँ हम रहा करते थे. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री. हमारे घर के पीछे ही गांव था. वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स. In less than 3 minutes we were on Oliver Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. अब क्या होता है कि 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलिवर वेन्यू में थे और उसके बाद घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया. हवा एकदम ताज़ी थी, बहुत शानदार थी, और घोड़े के दौड़ने का जो एहसास था वो बड़ा ही वंडरफुल था. मेरा जो कज़न मुराद था, जिसको फैमिली मेम्बर्स जो हमारे थे उनमें से उसको सबसे लोग पागल मानते थे, उसने गाना शुरू कर दिया. मेरा मतलब कि उसने चिंगाड़ना शुरू कर दिया. ऑब्वियसली जनरली क्या होता है कि रोर जो वर्ड है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रोर इज़ रिलेटेड टू द लायन. जो ऊंची आवाज़ में जो साउंड करना होता है उसको हम रोरिंग कहते हैं. जैसे गर्जन करना जिसको हम कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड होता है. तो बेसिकली दिस वर्ड रोरिंग इज़ बिलोंग टू लायन, क्योंकि शेर की जो आवाज़ होती है वो बड़ी ऊंची आवाज़ में शेर साउंड करता है, तो उसको रोरिंग कहते हैं. तो चूँकि घोड़ा स्पीड में था, हवा चल रही थी, और उसका जो कज़न था मुराद वो गाना गा रहा था. तो एक्चुअल में क्या है कि जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो तेज़ तेज़ आवाज़ में गाने लगते हैं. तो राइटर कहता है कि वो एक तरह से दहाड़ रहा था, इनके एक्साइटमेंट में आके लाउडेस्ट वॉइस में वो गा रहा था. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in a St. Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. अब क्या होता है कि हमारा जो परिवार था उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक पगलेट ज़रूर मिलता था. और मेरा जो कज़न मुराद था उसको तो नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था. हमारे जो पगलेट लोग थे ट्राइब के बड़े वाले, उनमें से एक उसको उनका डिसेंडेंट यानी कि उसका जो अग्रज था माना जाता था. उससे पहले हमारे अंकल हुआ करते थे जिनका नाम था कोशरो. ये जो बंदा था कोशरो बड़ा ही इनॉर्मस व्यक्ति था. इसका जो सर था बड़ा पावरफुल था, काले बाल और एक बड़ी सी इसकी मूछें थी. सेंट जोआक्लिन वैली, मतलब वैली जो थी जिसका नाम था सेंट जोआक्लिन वैली, उस वैली में सबसे ज़्यादा लंबी जो मूछें थी वो उसी की थी. अब ये जो बंदा था यानी कि मेरा जो अंकल, ये बड़ा फ्यूरियस था, गुस्से में बड़ा इरिटेट करता था, बड़ा इम्पेशेंट था, और किसी को भी चिल्ला करके बीच में रोक देता था और बोलता था कि कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो. दैट वाज ऑल. नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वाज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire. This was Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say."
इतनी सी बात नहीं थी, खैर कोई बात नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। एक दिन का किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि उनका जो बेटा था अराक, वो 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया जहाँ वो अपनी मूंछों को ट्रिम करवा रहे थे। अब जैसे ही वो नाई की दुकान पर पहुंचा, उसने अपने फादर को इन्फॉर्मेशन दी कि उनके घर में आग लग गई है। तो अपनी आदत के अकॉर्डिंग उसके फादर ने कहा कि कोई बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। अब ये बात सुन करके सभी लोग चौंक गए। नाई ने कहा कि अरे वो तुम्हारे घर की बात कर रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। तो उसने कहा मैंने कहा ना, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा था अंकल। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practically nothing else. That is how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. अब क्या होता है कि मेरा जो कज़न मुराद था वो इस व्यक्ति का नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि पूर्वज अग्रज माना जाता था। हालांकि मुराद के पिताजी थे ज़ोराब थे, जो कि प्रैक्टिकल बेंट ऑफ नेचर का व्यक्ति था। उसके अलावा कुछ उसको पता नहीं था, बस हमारी ट्राइब में ऐसा ही था। और एक व्यक्ति अपने बेटे का पिता हो सकता है, लेकिन उसकी जो आचार विचार हैं उसका उन पर कंट्रोल नहीं होता है। जितने भी ये स्पिरिट हैं, यानी कि जो भी आचार विचार है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ट्राइब में, वो थोड़ा सा कैप्रिशियस माने कि थोड़ा सा मनमोजी या फिर सनकी कह सकते हैं आप। वैग्रेंट मीन्स केयरलेस, मतलब एक कहीं ना कहीं पागलपंती के गुण थे हमारी ट्राइब के लोगों में कि कुछ ना कुछ वो काम ऐसे करते रहते थे जिसकी वजह से उनको क्रेजी कंसिडर किया जाता था। We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belong. We let the horse run as long as it felt like running. अब हम पुराने गांव में थे और लोग ऐसा कहते थे कि हम इस जगह से बिलोंग करते हैं। खैर हमने घोड़े को जितना वो दौड़ सकता था, यानी कि जितना उसके अंदर दौड़ने की हिम्मत थी, उसको हमने उतना दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अब नीचे उतर जाओ, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन? मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? मैंने पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। घोड़े पर डिपेंड करता है, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड। तो घोड़े की अगर बात है तो ये मुझे राइड करने देगा, देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मत भूलो कि घोड़े के साथ रास्ता केवल मैं जानता हूँ वापसी का। खैर, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। खैर तुम्हारे पास घोड़ा है, रास्ता है, तो मैं भी रास्ता जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, he said, let us hope so, get down. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी की वजह से कह रहा हूँ, नीचे उतर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना कि मुझे भी इस पर अकेले सवारी करनी है। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. उसके बाद मेरा जो कज़न मुराद था उसने घोड़े के साइड में हल्की सी किक लगाई और उसको वजीर, जिसका मतलब था रन, कमांड दी। और घोड़े ने अपने जो अगले पैर थे उनको उठा करके और एक फ्यूरियस स्पीड में भागने लगा। ये सबसे शानदार वो सीन था जो मैंने आज तक कभी देखा था। माय कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास इन एन इरिगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। मेरा जो कज़न मुराद था उसने घोड़े से रेस लगवा दी। जो फील्ड था, जो ड्राई ग्रास का फील्ड था जिसमें एक इरिगेशन डिच बनी हुई थी, उसके आर पार उसने उससे रेस लगवा दी। उसने डिच को क्रॉस किया घोड़े पर बैठ करके और 5 मिनट बाद वो वापस आ गया भीगता हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड।
सूरज आ रहा है, अब मेरा नंबर है राइड का. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. मेरा कज़न घोड़े से नीचे उतर गया. लो राइड करो. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिडंट मूव. अब क्या होता है कि मैं उछल करके घोड़े की पीठ पर बैठ गया, लेकिन एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए मैं जानता था कि वो जो मोस्ट ऑफुल फियर है इमेजिनेबल, जो मैं सोच रहा था, वो सामने आएगा. और वो सामने आया भी. घोड़ा हिला नहीं. किक इनटू हिज मसल्स. माय कज़न मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. क्या कर रहे हो? इसके मसल्स में थोड़ा सा किक करो. किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? इससे पहले कि लोग आसपास के उड़ जाएं, हमें वापस जाना है. सो this is the first part of the story, the summer of the beautiful white horse. And what happened next? Will they make it on time, or they will be caught they will be caught by somebody? So this was the first part of the story, the summer of the beautiful white horse. And in the next part we will come to know, will they succeed in making it, or somebody will see them and they will be caught by somebody, and their secret that they have stolen a horse will be revealed to anyone, and this will bring disgrace to the tribe. All of the mystery will be resolved in our next part of the story. Till then, thank you very much.